Good morning, student. This is the biology class, and today I will continue the remaining topics of the chapter, that is microbes in human welfare. Okay, this is the second video, and in this video I will discuss about the application of microbes in a different field, different areas. In my first video I have told you about the microbes, means introduction of microbes, but this topic, this chapter is stand for the application of the microorganism in the human welfare. So in this video I will discuss about the application or use of the microorganism in different fields. See, सभी को आप लोगों को पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, and there are a lot of other microorganism which are so harmful for all kind of living organism. Beside it, the microbes which are so important, there are some microorganisms which are so important for the different perspectives. Clear? So in this video I will discuss about the useful microorganism, means useful role of application of microorganism in different fields. In different fields, what I am trying to say, that is food industries, pharmaceutical industries, agricultural field, fertilizer industries, and other areas where microorganism used to synthesize, used to produce different kinds of materials for the humans use. Clear? Now, so different fields such as food industries, pharmaceutical, agriculture, and fertilizers, these are so important field in which microorganism used to synthesize different kinds of product which are useful for the human being as well as other living organism. So let's begin this topic, that is application of microorganism in the field of food industry. First, I will continuing this chapter with application of microorganism in the food industries. Clear? Beside all these industries, there are some other important application or role of microorganism in the production of biofuels. Clear? In the production of biofuels, biodegradation, sewage treatment, and bioremediation. These are so important processes where we use the microorganism for cleaning and conserving the environment for the betterment for life. सो इस चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करेंगे, बट फर्स्ट आई विल कंटिन्यू दी
application of microorganism in the food industries. As we know that food industry is another branch of science, clear, and this field, this areas basically involve the production of the different kinds of food materials for the human being as well as other animals, clear. So in the food industries there are two वैसे तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं. देयर आर लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट्स synthesized and testing by this food industries, ठीक है. And this branch is known as the food technology. So in which various kind of microorganism used to produce and enhance the productivity of the food items. So how many kinds of food items? There are so many kinds. There are a lot of items such as milk and dairy production, pickles, soya sauces, and idli, dosa, and so many items, food items which are produced with the help of by using the microorganism from the food industries. So इसमें हमने स्पेसिफिकली दो फूड आइटम्स को मेंशन किया है, बताया है कि कैसे फूड माइक्रो ऑर्गेनिज़म फूड के प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करते हैं और कैसे फूड टेक्नोलॉजी में इसको यूज़ किया जाता है. तो I have categorized these food items into different categories. First one is milk and dairy product, and the second one is other food production such as pickles, soya sauces, and idli, dosa, and tempeh, tofu, sofu, and so on. There are so many vinegars. These are another kinds of preservative or additive food materials which are used to add the taste and for the taste as well as life shelf of the food items. Let's talk about the microorganism used in the dairy production, clear. And we know that milk and dairy प्रोडक्शन डेयरी से बहुत सारे आइटम्स बनते हैं जैसे कि कर्ड, पनीर, क्रीम, चीज़, योगर्ट, butter. All these materials are the milk product. In this product, the major ingredient of these is the milk. Milk is the major ingredient. So as we know that in milk special important useful bacteria are present, like lactobacillus species. So lactobacillus species of bacteria present in the milk, and this lactobacillus bacteria converted into the curd whenever if any microbial activity start in the milk. So milk will convert into the curd after the microbial activity get started in the milk, clear. तो सबसे पहले तो डायरेक्टली हम लोग मिल्क को कंज्यूम करते हैं, तो उसमें भी जो भी मिल्क हम कंज्यूम करते हैं उसमें भी लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं. वो दूध के जो मिल्क होते हैं उनके टेस्ट को इंक्रीज़ करते हैं
और मिल्क के जो शेल्फ लाइफ होती है जो वो भी इंक्रीज़ करते हैं. बट वेन एवर इफ़ milk having any microbial activity, so that this lactobacillus bacteria converts the milk into the curd. Clear? So this is why, because of the presence of lactobacillus activity in the milk. Beside it, cream, cheese, yogurt is also made up of the milk, and but the microbial activity are different from the curd, because to produce cheese, yogurt, uh, other different bacteria are involved uh, for the better production and production of other food items. If we talk about the yes, if we talk about the butter, as you know that butter is made up of by churning cream. ठीक है, ये जो भी क्रीम होते हैं उसकी वजह से, उसके प्रोसेस की वजह से बटर को बनाया जाता है. एंड बटर मिल्क इज़ ऑब्टेन बाई प्रोडक्ट. ठीक है, एंड इन दिस स्ट्रेप्टोकोकस क्रीमोरिस एंड ल्यूकोनोस्टॉक डेक्स्ट्रानिकम, these are the important bacteria which are added for the flavor and taste for the butter. सो बटर में बटर को जो भी हम लोग कंज्यूम करते हैं, तो उसमें जो टेस्ट होते हैं और फ्लेवर जो आते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? दैट इज़ फ्रॉम दी स्ट्रेप्टोकोकस and leuconostoc species. So these are the bacteria which are used for preparing the butter and flavoring the butter. This bacteria is Streptococcus cremoris and Leuconostoc dextranicum. These two important bacteria present for making the butter. Next is the yogurt. Yogurt is also a staple food, and it is present from the fermenting milk. It means milk is the important ingredient, and this milk get pasteurized, get fermented, and beside it add the microbes in the pasteurized milk. Then it is further processed and producing the yogurt. Now for yogurt, the important process for making the yogurt is the तो योगर्ट को बनाने के लिए जो प्रोसेस यूज़ होते हैं, फर्स्ट प्रोसेस में हम मिल्क को ब्लेंडिंग और मिल्क को उसके टेम्परेचर को उसको एडजस्ट करेंगे. ठीक है, तो एडजस्ट मिल्क एंड ब्लेंडिंग, दिस इज़ द फर्स्ट प्रोसेस फॉर प्रोड्यूसिंग योगर्ट. After the adjust and blending milk, then pasteurization undergo the pasteurization. This blended milk undergoes the pasteurization, and pasteurization is the chemical process in which milk undergoes to the temperature. So
सो इस पास्चराइजेशन में हम टेम्परेचर के हेल्प से मिल्क के जो बैक्टीरियल एक्टिविटी है उसको कम कर देते हैं। देन आफ्टर द पास्चराइजेशन होमोजेनाइज मिल्क को, पास्चराइज्ड मिल्क को होमोजेनाइज करेंगे एंड होमोजेनाइज करने के बाद इस मिल्क को हम उसके टेम्परेचर को कूल डाउन करेंगे। आफ्टर द कूल डाउन ऑफ द टेम्परेचर ऑफ पास्चराइज्ड एंड होमोजेनाइज्ड मिल्क, inoculate with culture. So here question is that what is inoculum and what is culture? Inoculum is the piece of the microorganism, and culture is the growing microorganism. So whenever after these process, clear, after these processed milk, pasteurized or homogenized milk inoculate with culture, means then we have add microbes. Which kind of microorganism used in the production of yogurt? That is the lactobacillus and streptococcus thermophilus. So two important microorganisms, two important bacteria are used in the production of yogurt, and that bacteria is known as a lactobacillus bulgaricus and streptococcus thermophilus. So after the pasteurization of milk and homogenization of milk, add the bacteria such as lactobacillus bulgaricus and streptococcus thermophilus. Add in the pasteurized milk, then then आप इस टेम्परेचर पे रखेंगे। उसके बाद उसको कूल करने के बाद जो भी फ्लेवर ऐड करना है ऐड करने के बाद पैकेज उस योगर्ट को पैक्ड कर देंगे। तो देयर आर दी सम इम्पॉर्टेंट प्रोसेस फॉर प्रोड्यूसिंग दी योगर्ट. You should have to know about the bacteria, which kind of bacteria used in the yogurt production. So there are two bacteria, Streptococcus thermophilus and Lactobacillus bulgaricus. These two bacteria are used and prepared these culture and used in the milk, pasteurized milk. After that there are so microbial activity occurs inside the pasteurized milk, and that milk will converted into the yogurt. ठीक है, that is the simple and process of the production of yogurt with the help of culture of the Lactobacillus bulgaricus and Streptococcus thermophilus. तो लगभग 40 डिग्री सेल्सियस पर मिल्क को पास्चराइज करके हैं, उसमें इस बैक्टीरिया को ऐड करते हैं, और जैसे ही इस बैक्टीरिया को ऐड करेंगे तो मिल्क का जो टेक्सचर होगा, टेस्ट होगा, वो सब चेंज हो जाएगा, क्योंकि इस बैक्टीरिया के वजह से मिल्क अपनी जो मिल्क की प्रॉपर्टी है वो ख़त्म हो जाता है और वो योगर्ट में कन्वर्ट हो जाता है. दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट प्रोसेस. नाउ लेट्स देयर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ योगर्ट. ठीक है, योगर्ट का जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो योगर्ट को यूज़ किया जाता है वो इंडोनेशिया और जावा एरिया में ज़्यादा यूज़ किया जाता है. क्लियर. एंड चीज़ चाइना में भी योगर्ट को काफ़ी यूज़ किया जाता है. तो इन सभी में अलग अलग टाइप के योगर्ट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दियर टेस्ट एंड फ्लेवर.
Now come to on cheese. The process to production of the cheese are very similar with the yogurt. ठीक है, बट यहाँ पर एक चेंज ये होता है कि जब हम चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें प्रोसेस के साथ रिनेट एंजाइम भी डालते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे. So cheese is another important food staple food item which are prepared from the milk. So a major ingredient of the production of cheese is the milk. So इसमें भी and but different microorganisms are used in the production of cheese. Clear? So this इसमें क्या होते हैं प्रोसेस में कि फर्स्ट जो स्टेप होते हैं दैट इज़ कर्डिंग. तो पहले हम मिल्क को कर्ड के फॉर्म में लाएंगे. उसके बाद सेकंड जो स्टेप होता है वो है राइपनिंग. राइपनिंग के बाद हम इसमें माइक्रोब्स को ऐड करके उसको हम चीज़ के फॉर्म में लाने में रोल करेंगे. नाउ you should have to know what are the bacteria which are used to produce in a cheese market. So इसमें जो बैक्टीरियाज होते हैं that is Streptococcus lactis, Streptococcus cremoris, Leuconostoc citrovorum and Leuconostoc dextrinicum. सो जो बैक्टीरिया योगर्ट में यूज़ हो रहे थे वो बैक्टीरिया चीज़ में भी यूज़ होंगे. एंड बिसाइड टू अदर मोर बैक्टीरिया सच एज स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस एंड ल्यूकोनोस्टॉक सिट्रोवोरम, ये दो स्पेशल बैक्टीरिया है जो कि चीज़ प्रोडक्शन में यूज़ किए जाते हैं. तो इन बैक्टीरियाज के कल्चर प्रिपेयर करते हैं और बाद में जब हम मिल्क को पास्चराइज्ड कर लेते हैं, ये प्रोसेस तो होंगे ही. ये जो एडजस्टमेंट एंड ब्लेडिंग ऑफ मिल्क स्टार्ट होंगे, दैट इज़ द फर्स्ट प्रोसेस. एंड देन पास्चराइजेशन होगा. पास्चराइजेशन करने के बाद हम मिल्क को कर्ड के फॉर्म में लाएंगे, तो दैट इज़ नोन एज द कर्डिंग स्टेप. एंड दिस कर्डिंग स्टेप produce or product conversion of the milk into the curd by the enzyme. Which kind of enzyme? That is renin and lactic acid bacteria. तो रेनिन एक एंजाइम है. वो रेनिन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वो मिल्क में ही प्रेजेंट होते हैं. तो या तो अलग से रेनिन एंजाइम डालें या फिर इस मिल्क को ही एडजस्ट करें ताकि इसकी जो रेनिन एंजाइम है डिस्ट्रॉय ना हो और मिल्क आसानी से कर्ड में कन्वर्ट हो जाए. नेक्स्ट इस प्रोसेस की वजह से हम केसीन को मिल्क से अलग करते हैं. सेकंड प्रोसेस राइपनिंग हो जाएगा. राइपनिंग में हम अलग एंजाइम की एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है जिसकी वजह से चीज़ कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है. तो चीज़ कर्ड तैयार हो जाता है. इसमें सिर्फ आपको ये जानना है कि कौन से बैक्टीरियाज यूज्ड होते हैं. तो स्ट्रेप्टोकोकस क्रेमोरिस, Streptococcus lactis, Leuconostoc citrovorum and Leuconostoc dextrinicum. ये कुछ बैक्टीरियाज हैं जो कि मिल्क के प्रॉपर्टीज़ को एंजाइमेटिकली डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और उसे चीज़ में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट. इसमें देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ चीज़ सच एज रॉकफोर्ट चीज़,
स्विस चीज़, ये कुछ डिफरेंट चीज़ होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में यूज़ किए जाते हैं। कुछ किस फ्लेवर चेंज होते हैं, इस वजह से इनके अलग अलग नाम हैं। To produce the Roquefort cheese, the microbes are used in this production, that is Penicillium roqueforti or roqueforti. Penicillium roqueforti, that is the fungi. So in the production of या Roquefort कह ले चीज़, Roquefort cheese, the microorganism used in this product, that is Penicillium roqueforti. तो वहाँ से इस चीज़ का नाम रॉकफोर्ट चीज़ आया है। तो इफ़ इन द एग्जामिनेशन आस्क यू which kind of microorganism used in the production of Roquefort cheese, तो आपको पता होना चाहिए कि ये फंजाई की वजह से ये चीज़ बनाए जाते हैं। विच फंजाई? दैट इज़ पेनिसिलियम roqueforti. So this is the important fungi which are used in the production of Roquefort cheese. नेक्स्ट जो होंगे चीज़, दैट इज़ स्विस चीज़, एंड स्विस चीज़ आर प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरिया, दैट इज़ प्रोपियोनिबैक्टीरियम शेरमैनाई, प्रोपियोनिबैक्टीरियम शेरमैनाई. This is the important bacteria which are used to produce this Swiss cheese. So this, and beside this, a large of carbon dioxide is also used in the production of Swiss cheese. ठीक है, तो दो इम्पॉर्टेंट आपके बुक में दो इम्पॉर्टेंट चीज़ के नाम दिए हैं, दैट इज़ रॉकफोर्ट चीज़ and second one is Swiss cheese. And there in the production of to both kind of cheese, microorganism is different. रॉकफोर्ट चीज़ में पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई यूज़ हो रहे थे, वेयर एज स्विस चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए प्रोपियोनिबैक्टीरियम शेरमैनाई यूज़ होता है. दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया. सो this is all about the production of dairy product. डेयरी प्रोडक्ट में हमने देखा कर्ड, क्रीम, चीज़, योगर्ट, बटर. तो आपको इसमें बैक्टीरियाज के नाम याद होने चाहिए. नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे दैट इज़ अदर फूड प्रोडक्शन. अदर फूड प्रोडक्शन में जैसे पिकल्स हो गए, वेरियस पिकल्स हो गए, इडली, डोसा, टेम्फे, टोफू, सोफू, एसेट्रा. इसमें जो होते हैं इन सभी फूड प्रोडक्ट में मिल्क इज़ नॉट अ मेजर इंग्रेडिएंट. ठीक है, इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट यूज़ होते हैं बिसाइड दी मिल्क. सो इसलिए हमने इसको अलग कैटेगरी बना दिया है अदर फूड में. इडली डोसा जो भी मार्केट में हम लोग देखते हैं, दैट इज़ मेड अप विथ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल सच एज राई. ठीक है, तो ये सारे प्रोडक्ट यूज़ होते हैं. डोसा इसमें माइक्रोबियल एक्टिविटी को, माइक्रोब्स को यूज़ करने के साथ साथ हम कुछ केमिकल भी यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से इन सभी प्रोडक्ट का जो नेचर होता है वो पफ़ी टाइप का होता है. ठीक है, तो उसको के लिए हम सोडियम बाइकार्बोनेट एंड जो सोडा यूज़ होते हैं वो सोडा पाउडर एंड सोडियम बाइकार्बोनेट यूज़ करते हैं. तो अब इसको हम बुक के हाथ से स्टडी करते हैं. सो देयर आर सम इम्पॉर्टेंट microorganisms which are used in the production of non-dairy
food item, and this is the non-dairy food item. Dosa, idli, bread, sausage, tofu, toddy, these are the non-food items. And in this food items, there are different kinds of microorganism are used, such as rhizopus, torulopsis, penicillium notatum, aspergillus, uh, chlorella. These are the basically fungi and algae. These are the important microorganisms which are used in the production of non milk non dairy product. एग्जाम्पल के लिए ले लें ब्रेड. ब्रेड इज़ इम्पॉर्टेंट फूड प्रोडक्ट ऑफ फॉर द ह्यूमन बीइंग. ठीक है, और इसको यूज़ करते हैं. इसमें जो हम लोग यूज़ करते हैं वीट, जो वीट होते हैं, फ्लोर होते हैं, उसको यूज़ करते हैं और उसको हम फर्मेंट करते हैं. फर्मेंटेशन प्रोसेस में हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म यूज़ होते हैं, जैसे कि ईस्ट. ईस्ट का जूलॉजिकल नेम जो है दैट इज़ सैक्रोमाइसिस सेरेविसी. ठीक है, वेरियस काइंड ऑफ ईस्ट आर known, but for the production of bread only special kind of yeast are used. Which kind of yeast? That is known as a breaker yeast. So breaker yeast, its scientific name is Saccharomyces cerevisiae. You should always remember this microorganism, because sometime in a different competitive exam this directly question पूछ दिया जाता है कि for to producing bread which kind of microorganism used. So ये आपको याद रखना पड़ेगा ब्रेकर ईस्ट. ठीक है, तो बैकर ईस्ट यूज़ करते हैं. बैकर ईस्ट का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज़ सैक्रोमाइसिस सेरेविसी. सो क्या होता है कि इसमें जो भी हम ब्रेड बनाने के लिए जो आइटम यूज़ करते हैं, चाहे वो मैदा हो, चाहे वो अदर सोर्स हो, तो उसमें उस कैसे बनाते हैं, उस मैदे में, उसके डो में हम ईस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज़म को डाल देते हैं. ठीक है, तो क्या होगा, और डाल करके उसको कुछ समय तक एक ऑप्टिमम टेम्परेचर तक उसको लीव कर देंगे, छोड़ देंगे. तो क्या होगा, उससे कुछ के बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगा. ठीक है, तो इससे पता चल जाता है कि अब जो आइटम है वो ब्रेड में कन्वर्ट होने के लिए रेडी है. तो जैसे ही उस मैदे में अगर ईस्ट डाल दिया गया और उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर पे रख दिया गया, तो ईस्ट की एक्टिविटी स्टार्ट होगी. उसमें कुछ एंजाइम एक्टिविटी स्टार्ट होगी जो उस मैदे का फ्लेवर चेंज करेगा, उसके टेस्ट को चेंज करेगा, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगा. जो ईस्ट है वो रेस्पिरेशन करते हैं, अपने ग्रो करते हैं, और उसके दौरान वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से आटे का जो मैदा होता है वो पफ़ी नेचर का हो जाता है और उससे ब्रेड बनता है. इसलिए जब ब्रेड में आप देखते होंगे कि बीच बीच में स्पेस होते हैं, वो इसीलिए होते हैं क्योंकि उसमें ईस्ट यूज़ होता है और उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होते हैं. तो ब्रेड में जो स्पेस होते हैं, गैप होते हैं, बिकॉज ऑफ दी माइक्रोबियल ईस्ट एक्टिविटी एंड प्रोड्यूसिंग दी कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट. सो इसमें आपको ये याद रखना है, बैकर ईस्ट यूज़ होता है. ईस्ट नॉट ईस्ट की अलग कैटेगरी होती है. ठीक है, और इसको ईस्ट के ही नाम से जाना जाता है. Now I think yeast is the group of the bacteria, specialized bacteria होते हैं. तो इसमें आपको याद रखना है कि बैकर ईस्ट used for the bread production. Now come to on dosa idli is so common, and it is also prepared by the
बैक्टीरियल एक्टिविटी, ठीक है। एंड फर्मेंटेशन प्रोसेस यूज़ हो जाते हैं। इसमें भी जो भी इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं डोसा और इडली बनाने के लिए, और उसमें बैक्टीरिया की एक्टिविटीज़ की वजह से बैक्टीरिया कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है। तो ये इस और वो पफ जो आइटम होते हैं वो पफ़ी होते हैं। नेक्स्ट जो होंगे वो सॉसेस होंगे। डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉसेज आर, सॉरी ये दिख नहीं रहा है, yes, now you can see. So different kinds of sauces are used in a different for preparing different kinds of food items such as चाउमीन, मैगी, ये सब जो भी आइटम जो भी फूड हैं उसमें ये सॉसेज यूज़ होते हैं। एंड सॉसेज आर यूज्ड बाय द हेट्रोलैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। सो इसमें जो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ हेट्रोलैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ठीक है। इस वेजिटेबल्स सच एज कैबेज, कैरेट, कुकुम्बर, टोमेटोज, these are fermented by using lactic acid बैक्टीरिया। तो जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया थे वो बेसिकली सॉसेस को बनाने में यूज़ किए जाते हैं। सो कौन कौन से इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। लैक्टोबैसिलस प्लांटेरम, नेक्स्ट ल्यूकोनोस्टॉक मेसेंटेरॉइड्स, Enterobacter. These are the important bacteria which are used in the production of sauces, ठीक है। एंड सोया एग्जाम्पल ले लें, सोया सॉस। सोया सॉस इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दी सोयाबीन, wheat and wheat bran. So the important ingredient for producing soya sauces are the soyabeans, wheat and wheat bran. And in the soybean add these bacteria which cause fermentation and then producing the soya sauces, ठीक है। तो इसमें जो सोया सॉसेस को बनाने में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ होते हैं दैट इज़ फंजाई। एंड फंजाई में कौन से फंजाई? एस्परजिलस ओराइजी, ठीक है, Aspergillus oryzae. So this is important fungi which are used in the production of sauces, or we can say cozy fermentation. Cozy fermentation क्या होते हैं? Cozy fermentation is a dry fermentation in which a mixture of soybean and wheat is inoculated with the एस्परजिलस ओराइजी, ठीक है। जब सोयाबीन को क्रश्ड करते हैं, क्रश करके उसमें उसे हम क्या एस्परजिलस से मिक्स कर देते हैं और उसके बाद ये फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाता है। तो उसी को हम कोजी फर्मेंटेशन कहते हैं। तो कोजी फर्मेंटेशन इज़ अ टाइप ऑफ ड्राई फर्मेंटेशन प्रोसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सोया सॉसेस। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि विच इन द प्रोडक्शन ऑफ सोया सॉसेस विच काइंड ऑफ फर्मेंटेशन यूज्ड, दैट इज़ द कोजी फर्मेंटेशन. So कोजी fermentation used in the production of soya sauce, and Aspergillus oryzae are used during the कोजी fermentation. तो ये आप हमेशा याद रखेंगे. मेडिकल एग्ज़ाम में कभी कभी डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि कोजी फर्मेंटेशन में कौन से फंजाई यूज़ होते हैं. एस्परजिलस ओराइजी, ओराइजी ये जो वर्ड यूज़ हुआ है दैट इज़ फ्रॉम दी वीट. सो ओराइजा सटाइवा राइस होते हैं, तो उनके जो बोटानिकल नेम होते हैं, साइंटिफिक नेम है, उसी के स्पीशीज़ को लिया गया है. तो एस्परजिलस ओराइजी. नेक्स्ट आपके जो फूड प्रोडक्ट हैं, नॉन फूड प्रोडक्ट, नॉन डेयरी प्रोडक्ट, दैट इज़ टेम्फे. टेम्फे is another important
food item that is consumed in the uh, इंडोनेशियन जावा। ठीक है, तो इन सभी जगहों पर ये टेम्फे ओरिजिन कहते हैं कि इंडोनेशिया से ही इसका ओरिजिन हुआ है, बट इसके ओरिजिन को लेकर के अभी भी बहुत सारे डिबेट्स हैं। लेकिन हाँ, जो मेजर कंजप्शन होता है टेम्पे का वो होते हैं इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया के आसपास जितने भी कंट्रीज़ हैं वहाँ यूज़ होते हैं। योगर्ट चीज़ तो हर जगह यूज़ होते हैं, लेकिन इनके जो कॉमन ओरिजिन होते हैं वो यूरेशिया से स्टार्ट होते हैं, दैट मीन्स यूरोप एंड रशिया कंट्री से स्टार्ट होते हैं। और टेम्पे की जो ओरिजिन होती है वो ऐसा माना जाता है कि इंडोनेशिया से यूज़ होता है। इन द टेम्फे में जो मेजर इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट यूज़ होते हैं दैट इज़ सोयाबीन। सोयाबीन इज़ द इम्पॉर्टेंट मेजर इंग्रेडिएंट, और हम कह सकते हैं रॉ मटेरियल है जिससे टेम्फे तैयार किया जाता है।